Hello, am I audible, guys? Can you all hear me? Please let me know how is the voice quality today. So I'm your trainer for today, and I hope you all are having an amazing day. How is it going? Great, good, great, amazing, amazing, amazing. I'm sure अभी तक सबका lunch हो चुका होगा, and you all are in a very relaxed mood, so that we can move forward with the concepts that we will be studying today. Lunch ज़्यादा heavy हुआ होगा and you feel sleepy, go get a cup of coffee for yourself. Just let me know. You need a minute, 2 minutes, and grab a cup of coffee or tea, whatever you want, so that we can proceed further. So what was your session about yesterday? CM. Okay, so Cloudera Manager का deployment देखा आप लोगों ने? Amazing, amazing, amazing. Great. So, who can tell me what are the demons of Hadoop? Hadoop 1 में क्या-क्या demons थे? To be specific, Hadoop 1 के demons कौन-कौन से थे? NN, okay, Vishal, SNN, NN, SNN, okay. So NN, SNN and DN, ये 3 demons जो है ये Hadoop 1 के हैं. अब मुझे ये बताइए कि Hadoop 2 में क्या change हुआ? Hadoop 1 में और Hadoop 2 में क्या difference है? Who can tell me? Okay, someone said yarn in Hadoop 2. Then what do we have in Hadoop 1? Shahid is right. We have MapReduce. Okay. How many of you all know how MapReduce works? How does it work? कैसे काम करता है? How many of you all do not know? Give me a thumbs up, a thumbs down. So if you know, give me a thumbs up. If you do not know, give me a thumbs down. That's all I want you to do. Okay, you're just saying don't know. Okay. Okay. So जो हमारा input है, पहले वो map होगा, छोटे fragments में divide होगा, फिर वो एक जगह store हो जाता है, intermediate data के form में, फिर वहां से हमारा reducer जो है उसको shuffle stage में उठाता है, उसको फिर एक जगह लेकर आता है और फिर वो output processing के लिए जाता है. In short, this is how your MapReduce works. Okay. So do you know what will be a profile when you go into the market? आप किस हिसाब से काम करोगे? What will be your designation? Yeah, what exactly you need to do? Admins, yes. We are administrators. तो क्या काम है हमारा? क्या काम करते हैं हम लोग? Administrators का काम क्या होता है? क्लस्टर को डिप्लॉय करते हैं हम लोग, क्लस्टर को रेडी करा के देते हैं, एंड जैसे ही क्लस्टर रेडी हो जाता है हमारा काम यह है कि भाई उसको अप एंड रनिंग रखो. तो जितने भी हमारे एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, या जिनको भी डेटा चाहिए जो हमारे क्लस्टर पे आ रहे हैं डेटा लेने के लिए, वी हैव टू मेक श्योर दैट द डेटा इज अवेलेबल टू देम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम. ये हमारा काम है. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं. कल आपने क्लाउडेरा मैनेजर का डिप्लॉयमेंट देखा, उसमें आपको एक टर्म आया होगा prerequisites, which is our topic for today. How many of you all understand the word prerequisites? What do you know about prerequisites? What does the word mean in literal English? अच्छा, सबसे पहले please tell me how are you all comfortable? English, Hindi, क्या comfortable है? English, mixture, Marathi, what do you want? जिन्होंने मराठी बोला है उनको हिंदी तो आती होगी ना? English and Hindi का combination will be good. Amazing. Okay. So we stick to majority. Okay. तो थोड़ा सेशन हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, इस तरह से हम लेते हैं. अगर किसी को भी at any point of time, guys, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा स्पीड ज्यादा है, आवाज क्लियर नहीं है, एक्सेंट समझ नहीं आया, मैम मलयाली बोल रहे हो आप, केरलाइट्स की तरह बोल रहे हो या नॉर्थ इंडियंस की तरह बोल रहे हो या व्हाटएवर, सो आप मुझे बता दीजिए. Okay, I'll go slow. Thank you. If I'm very fast, do let me know. If I'm very slow, do let me know. If you're feeling sleepy, you just need a break. Oh my God, what have you thought? We didn't understand. Bouncer gaya sab, thoda break do. I'll give you that required break also. The main motive here is not to complete the session or to just get the information across. My motive here, my purpose here as a trainer is to make you understand why we are doing certain things, you know. Like करते क्या है ये आपको हर जगह पता चल जाएगा. You go to any source these days, you know how easily it is available. और क्या करना है anybody would tell you.
why we do it and how you do it. This is the USP of CloudAge, guys. That's why we are here. तो जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या क्या करते हैं, 100 out of 100 will be able to probably say कि हम क्या क्या करते हैं, but you guys will be outstanding there. आप stand out करोगे because you know कि हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं और इसको better way में कैसे किया जा सकता है. Getting it? Is that clear? है ना? आवाज क्लियर है, स्पीड सही है, एक्सेंट सही है, समझ आ रहा है, कंफर्टेबल हो. अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड. ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी और एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, एक पाइथन की स्क्रिप्ट है. आपको मैं बताऊंगी कि कंपनी में प्री रिक्विजिट्स करना, ये जो इतनी बड़ी टर्म है, ओ माय गॉड, वो प्री रिक्विजिट, पहले रिक्विजिट का स्पेलिंग ही याद रखना बड़ी बात हो जाती है. तो ये जो इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी है प्री रिक्विजिट, या तो एक करना कितना आसान है. लाइक लेट मी टेल यू, इट्स very simple. Once you have a nice lovely script, error free script in front of you, it's very easy. अब उसके बाद हम आएंगे उसकी डिप्लॉयमेंट पे. लाइक हम एक एक स्टेप उठाएंगे और एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. This session is very important, guys, because you really need to know these concepts, and I would like your feedback as and when we proceed. कहीं पे you need a break, let me know, लेकिन get things across. देखो, एक बार कंसंट्रेशन से सुनो, लाइफ लॉन्ग इसको याद रखो. 50 बार रिकॉर्डिंग सुनोगे, अभी कुछ टाइम पास चल रहा है, सामने सेशन चल रहा है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कहीं पे फेसबुक चल रहा है, और मैं बोलती जा रही हूँ. मेरा कुछ नहीं जाना है. Guys, even if there is one person listening, even if there is one person attentive, I will do my job. I will give it my 100%. In fact, I'll try to give it my 200% to get the concept across, and I'll walk off. People who ask question, I'll try my level best to answer them. लेकिन अगर आप अभी वहां बैठ के टाइम पास करोगे तो इसमें तेरा घाटा, सिंपल सी बात है. तो ट्राई, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो जो है टाइम. ट्राई टू बी अटेंटिव इन दिस टाइम, ताकि आपको दोबारा ये रिकॉर्डिंग 4-5 बार ना सुनना पड़े, एक बार में कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए. ओके, ऑल्सो लेट मी टेल यू, आई हैव अ रियली बैड थ्रोट. I may get like कभी इरिटेशन होता है, कॉफ हो जाता है. I'll just put you on mute for say around 30 seconds and get a sip of water. So please guys bear up with me. Okay. Okay, someone is saying जब चीजें बाउंसर जाती है तो मैम हेल्प करने आते हैं. चलो, let's start. Ajinkya, Yakub. Okay, so I'll be sharing my screen, guys. ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, ये मैंने ओपन करके रखी है. ये सेशन के बाद प्रोबेबली आपको मिल जाएगी. अभी हम आते हैं हमारी EC2 इंस्टेंस पे. होल्ड ऑन गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट. आप लोग सब देख पा रहे हो जो भी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ? लाइक अभी स्क्रिप्ट दिख रही है आप सबको? सारे स्क्रीन शेयर किए मैंने. इज इट विजिबल गाइस? ऑलराइट, अमेजिंग. चलो, अब आपको क्या दिख रहा है? व्हाट कैन यू सी हियर? AWS, यस. अब आप सबको ये तो पता ही है कि इंस्टेंस किस तरह लॉन्च करते हैं, तो हम क्विकली जाके लॉन्च इंस्टेंस करेंगे. ओके, I'll go to the old experience. I'm a little old. I like that one. I'm not very familiar to the new one. CentOS 7 का एक मशीन हम उठाते हैं. ओके, कहाँ से लेंगे CentOS 7? हम लेंगे AWS मार्केटप्लेस से. ठीक है, AWS मार्केटप्लेस से हम लेंगे CentOS 7. ये देखो, एंटर प्रेस करते ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक दिस वन, free tier eligible. Okay, CentOS 7 free tier eligible, and you select. I've got a bad throat, bad throat, like lots of swelling. Okay, so I go to instance families, and let me pick a nice machine for you all so that things just happen quickly. M4 लेते हैं हम.
M4 लार्ज ले लेती हूँ मैं, एंड गो हियर। कितने इंस्टेंसेस चाहिए हमको? हम लेंगे 2 इंस्टेंसेस। 2 किस लिए, ये अभी आपको समझ में आएगा आगे। फिलहाल 2 इंस्टेंसेस मैं लूंगी, एंड आई जस्ट डू रिव्यू एंड लॉन्च, एंड आई डू से लॉन्च की कौन सी है मेरे पास अभी, ये वाली है, डे 1 इज माय की, एंड आई लॉन्च इंस्टेंस। हमारे इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहे हैं। या ये तो सभी को आता है, राइट? ये प्रोसेस क्लियर है, सभी को आता है यहाँ तक? Asif says yes, Suvarna says yes, everybody say yes, 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 yes. Amazing, great, great, great. Good crowd. एकदम फटाफट ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे को, लाइक एवरीवन इज अवेक, सब ऐसे है वहां पे, सुन रहे हैं मेरी आवाज। आई एम सो हैप्पी। वरना पता चलता है कि एक ऐसे डल क्राउड है, यू नो, लाइक आई बीन थ्रू दिस, कि आप इतनी इंथुजियाज्म से पढ़ा रहे हो, यू आर देयर, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, यू आर ट्राइंग टू गेट थिंग्स अक्रॉस, and people are just sleeping and drowsy, and I know it is afternoon time and there is nice sunny weather outside. किसी को भी ये सब नहीं करना है, but I'm so happy you guys are so interactive. Thank you. Okay, चलो व्यू इंस्टेंसेस करते हैं फटाक से। तो ये हमारे 2 इंस्टेंसेस यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे हम रनिंग डाल देते हैं ताकि जो रनिंग है उतने ही हमको दिखे। Okay, so I'll say 1 and I'll say 2. ठीक है, क्यों 2 इंस्टेंसेस लिए हैं इसका आंसर आपको अब मिल जाएगा। So पहले हम आते हैं 1 पे। Let's go to the 1. Pick your public IP address. Go to your PuTTY. Just paste your IP address there. You go to your SSH. You go to your auth. Browse your key. Where is the key? Day 1. Okay, amazing. Open. Open. There you go. तो ये हमारा जो फर्स्ट मशीन है वो अब कनेक्ट हो चुका है। Okay, I'll just increase the font so that all of y'all are able to see and I don't irritate y'all further. So कर देती हूँ इसको, let's keep it to 20 and apply. So is this clear? Login as CentOS. ठीक है, क्लियर है सबको? सब लोग ठीक से देख पा रहे हैं स्क्रीन को? Yogit says yes, Jyoti says yes, Asif, Arvaz, Afwan, Prithviraj, Suvarna. Amazing, amazing. Everybody is saying yes. Irfan is also saying yes. Good, great. अब हम क्या करते हैं? Now we'll go to this script that I have. Okay. Oh no, first I'll go to command prompt. अभी इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। First I'll do CD downloads. Downloads में जाती हूँ। अभी आपको पता है कि एक सिक्योर कॉपी किसी भी चीज की किस तरह भेजी जाती है, that is SCP-I. What was the name of my key? Just hit tab and then there is this file under the name prerequisites underscore tested underscore CentOS 7. इसका AMI है, ठीक है। Where do I need to send it? देखो अब मैंने क्या किया, सिक्योर कॉपी -I is an identifier, मैंने की दिया है, उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम दिया। अब मुझे कहाँ भेजनी है ये CentOS जो हमने लॉगिन एज किया था, @ और I'll go to this AWS and I'll copy the IP address. Come back to my command prompt, paste it there and colon, ठीक है, and just hit enter. It will say, are you sure you want to continue connecting? Yes, I do. Why is it not taking the yes there? End. And if you see here, ये देखिए, here can you see this? It is sent. यहाँ तक क्लियर है मैंने क्या किया? वाह वाह वाह, धर 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 यस आते हैं सारे। गुड। तो अभी कमांड प्रॉम्प्ट को बोलेंगे भैया तू रेस्ट कर ले, तेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, प्लीज डू इंक्रीज फॉन्ट साइज। और खत्म, कमांड प्रॉम्प्ट का काम खत्म है। ऑल आई डिड वाज SCP से मैंने की सेंड की। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू माय PuTTY। आई गेस वहां की जो फॉन्ट साइज है वो प्रीटी कंफर्टेबल है। अब मैंने भेज दिया है वहां से, उसने तो मुझे बोला मैडम काम हो गया, आपके पैसे बैंक में पहुंच गए। मेरा काम है ना कि जाके चेक करूं, मैं मिनी स्टेटमेंट निकालूं और चेक करूं कि पैसे पहुंचे हैं या नहीं भाई। तो LS किया है मैंने, लिस्ट किया है। कैन यू सी दिस फाइल हियर? गुड। तो ये फाइल हमारी आ गई। अब आप सबको एक चीज क्लियर हो गई कि SCP से किस तरह हम फाइल
की किया ना बेटा मैंने, day 1 बोल के जो डाला था मैंने वहां पे SCP-I, then I gave the key name, that is day 1, then I gave the file name, and then I sent it to CentOS. I guess somebody needs a cup of coffee. मैम आपने की सेंड नहीं किए, ये किसने कहा मुझे? अब यहाँ पे वापस आता है, तो यहाँ पे वापस आने के बाद मैं क्या करूंगी, ये देखिए, सिंस इट इज अ पाइथन स्क्रिप्ट, आई टाइप पाइथन, और मैं ये नाम दे दिया मैंने फाइल का. Which file is this? This file is of the prerequisites. You know, it is a script that has been tested for you guys, और आपको ये script मिल जाएगी after this session. एक Python script है, इसमें सारे prerequisites किए गए हैं. इसी तरह की script आपको companies में दी जाती है when you want to do the prerequisites. That's what admins are for, to make your own life easy. Clear? तो ये script आपको मिलेगी and there I go, I say enter. और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फट 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 ये स्क्रिप्ट पूरी तरह आराम से एग्जीक्यूट हो रही है. ये प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आई विल वॉक यू थ्रू द एंटायर स्क्रिप्ट एंड ऑल द स्टेप्स, एंड आई विल लेट यू नो व्हाई वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग एवरीथिंग. ठीक है? अब तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई इश्यू है, कोई चीज दिमाग में अटक गई है, कोई प्रॉब्लम है? No. मैम पाइथन इज प्री इंस्टॉल्ड इन CentOS. यस, पाइथन डाला हमने और स्क्रिप्ट रन कर दी. क्लियर? मोहम्मद शेख सेज एवरीथिंग इज क्लियर. अमेजिंग. Yes, you can also call it kernel tuning. Kernel tuning Oracle में होता है. So few people say it is kernel tuning, few people say it is prerequisites, one and the same. Okay. Guys, see, the thing is that I am not allowed to give in my personal credentials to anyone. मैं नहीं, या स्मोक टेस्ट भी कहते हैं इसको. प्री यानी पहले, requisites यानी रिक्वायरमेंट. देखो, लाइक फॉर एग्जांपल, इसको लेमैन टर्म में मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगी? लेमैन टर्म में इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि आई वांट टू स्टे इन अ हाउस. मुझे घर में रहना है. मुझे जब घर पे रहना होता है तो आई गो एंड आई हैव टू ऑप्शंस एक्चुअली. either I buy a house or I go for a rented apartment. अब मुझे क्या करना है? मैंने बोला नहीं भाई, खरीदने के इतने करोड़ों से लाखों से पैसे नहीं है. I choose a rental apartment. Then again I have two choices. Either I move into an apartment which is just brick walls and a door, or I move into a furnished apartment. तो आपको प्रीरिक्विजिट्स किया कराया AMI जब मिलता है तो दैट इज योर फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट. सब कुछ किया कराया मिलता है. मगर अगर आप ओपन सोर्स पे काम कर रहे हो तो आपको एक मशीन दी जाती है, ये IP है, ये मशीन है, और आपको सब कुछ खुद ही से करना है. तुम्हीच आहात तुमच्या जीवनाचा शिल्पकार. मीन्स यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ. खुद करो जो करना है. तो वहां पे ये काम आता है कि आपको पहले एक घर दिया गया है, आपको उसको पेंट कराना पड़ेगा, आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर फर्नीचर लेके आना पड़ेगा, उसको ग्रूम करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल बनाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा. सब चीज करते हुए फिर आप उसमें रह पाओगे. सो प्रीरिक्विजिट्स व्हाई आर वी डूइंग? वी आर डूइंग बिकॉज वी डू नॉट हैव अ फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट. खूप छान. हो हो, खूपच छान ना. एनिथिंग मोर ऑन प्रीरिक्विजिट्स? काही राहिलंय अजून? काही डाऊट राहिलाय डोक्यात? एनीथिंग यू वांट टू नो? एनीवन इज नॉट क्लियर? क्योंकि भाई प्रोडक्शन में CentOS रेड हैट ये यूज होगा ना, इसीलिए. ठीक है. तो अभी हम आए हैं प्री रिक्विजिट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद. ये स्क्रिप्ट रन हो रही है. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस. हियर जस्ट 1 मिनट है गाइस. पता नहीं भाई दिस इज नॉट रनिंग. Tried it. Acha, who prepares the script, guys? Developers do it. Don't worry about that. You are just required to run the script. देखो अभी क्या हुआ है कि ये प्रोसेस अभी भी रनिंग बता रहा है.
and I want the process to be killed immediately. Okay, so what will I do? I'm going to kill this, and I'm going to again fire the same script. Hold on. Guys, see what I have done here. I did sudo kill -9, and can you see this process ID number? I put that. Let's see. ये हमको ही R&D करते रहना पड़ता है ऐसे. There you go. अब हम ये दोबारा से करके देखते हैं. तो क्या किया उसने? हमको उसको फोर्सफुली पूरे जॉब को किल करना था, तो हमने किया है sudo kill -9, और वहां पे PID नंबर जो था जहाँ पे अटक गया था हमारा जॉब, वो PID नंबर हमने डाला, प्रोसेस को किल कर दिया फोर्सफुली. नाउ वी आर गोइंग टू अगेन रन द स्क्रिप्ट. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग. मैं तब से कर रही थी, इट वाज जस्ट वर्किंग फाइन. ओके, ठीक है. सो ये चल रहा है बैकग्राउंड में. तब तक हम क्या करते हैं, अभी हम हमारे दूसरे इंस्टेंस पे आते हैं, so that I can walk you through the script step by step. तो यहाँ से हमने दूसरा उठाया. There I go to SSH or the browse. I go to the key that I have and I open it and accept. तो बैकग्राउंड में एक जो हमारा इंस्टेंस है उस पे चल रही है स्क्रिप्ट. यू कैन सी दिस हियर. इट्स प्रोसेसिंग. सारा काम वो कर रही है, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू एक्चुअली. वो एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट होती है, एंड इट विल डू व्हाट इट नीड्स टू बी डन. नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. तो ये हम ओपन करते हैं. थोड़ा अपीयरेंस का चेंज कर दूं, अप्लाई करूं, एंड आई थिंक यू ऑल शुड बी एबल टू सी इट. What's going on in the chat? Why -9, guys? That is a command to kill a particular process immediately. And you know what we have to do is just type kill -9. That is a command. I mean, that's how it is. And just put the PID. That's your process ID there. Okay. ठीक है. अब let's come to the script. Okay. ये देखो, यहाँ पे ये प्रोसेस में चल रहा है, चीजें इंस्टॉल कर रहा है, डिसेबल कर रहा है, एनेबल कर रहा है, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन इट इज डूइंग. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अब हम आते हैं sudo yum install wget. अभी just because it is CentOS, it will not have wget. अगर है तो well and good, नहीं है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं. -y इसलिए डाला हमने ताकि वो yes no घड़ी घड़ी ना पूछे. So now we have installed wget. To download any package, we need this wget utility. Okay. Control L. Up come to the script again. We do yum install nano. Actually, इससे पहले एक और step है. आप लोग जब करोगे तो करना. Just update the system so that the repository is updated. Okay. Make sure the repo is updated. So just do sudo update. ठीक है. तो नाउ नैनो इंस्टॉल किया, wget इंस्टॉल किया. अब नेक्स्ट लाइन क्या है, तो हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं जावा. wget से हमने डाउनलोड लिंक डाली है वहां पे जावा की. कैन यू ऑल सी दैट? JDK इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाई जावा, व्हाई डू वी नीड दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ जावा की जावा 7 8 जो भी है हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? व्हाई डू वी चूज अ पर्टिकुलर वर्जन, एंड ऑल्सो व्हाई जावा? Who is Akash Sherke? Very good. Compatibility. So, no, Aziz, I guess Akash gave the right answer. It is compatibility. And why Java? Best. Yes, Mehraj, you're right. Platform independence के लिए लिखा गया था Java में Hadoop, right? तो उसको platform independent बनाने के लिए Java का choice था. अब हम Java इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं कि हमारा जो हार्डवेयर लेयर होता है उसके ऊपर हमारा वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का लेयर आता है, उसके ऊपर Java आता है, उसके ऊपर बैठता है हमारा Hadoop.
ठीक है। तो जावा जो है आपका जो भी हार्डवेयर लेयर है उससे इंडिपेंडेंट बना देता है आपके हडूप को। अभी हम यहाँ पे जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप जाओगे क्लाउडेरा पे या जो भी आपका हडूप का वर्जन है, क्लाउडेरा पे जाके आप उसकी कंपैटिबिलिटी लिस्ट चेक करोगे तो जो लेटेस्ट है वो हम नहीं इंस्टॉल करते। हम कंपैटिबिलिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट कंपैटिबल वर्जन है आपके पर्टिकुलर हडूप के वर्जन के साथ, वो हम इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोबेबली यहाँ पे हम वो पर्टिकुलर वर्जन वहां से पिक करेंगे और वो इंस्टॉल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको मैंने क्या क्या किया? wget इंस्टॉल किया, मैंने नैनो इंस्टॉल किया, -y ताकि वो यस नो ना पूछे, मैंने जावा इंस्टॉल किया। सिंपल, एकदम सिंपल है यहाँ तक, है ना? वेरी नाइस। आई लाइक द वे पृथ्वीराज गिव मी अ थम्स अप। आई एम सो फॉन्ड ऑफ इट। थम्स अप, थम्स डाउन, थम्स अप, थम्स डाउन, साइन लैंग्वेज, वेरी नाइस। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हम देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग अ स्मोक टेस्ट हियर। सो स्मोक टेस्ट करते वक्त नाउ आई एम फायरिंग द फर्स्ट कमांड, that is check prerequisites. Okay, we are going to check the prerequisites. I fired it. It's running. ठीक है, 100% कंप्लीट। अभी कंट्रोल एल कर देती हूँ ताकि आप सबको मेरा स्क्रीन दिखे अच्छे से। नेक्स्ट, आई एम डूइंग द नेक्स्ट वन। ये क्या होता है? What is this one? Disable IP tables sh.sh. Control C. Yeah, there you go, 100% किया है। अब IP tables क्या होते हैं? This is the question. ठीक है, what are IP tables? How many of you all have any vague idea about this? Yes, disable किया, हमने disable किया। क्यों किया, क्या किया? पहले तो IP tables क्या होते हैं, कौन बताएगा? I like that, like the way Aziz has put up security exclusion. Okay, I take that. What else? No answers coming up. None of you all know what IP tables are? Good, happy. I'll explain what they are. Just इसको control L कर दूं and we come to our paint now, where I should be able to explain what they are. ठीक है. So we come to our paint and here you go. Is the speed okay, guys? Is the speed fine? Are you all comfortable with the speed? या बहुत slow जा रहा है? अरे perfect ऐसे वर्ड सुन के तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। चलो, सो नाउ आई देखो, जब बेयर मेटल होता है ना, बेयर मेटल होता है तो वहां पे जो हमारा फायरवॉल यूज होता है उसका नाम है स्क्विड। ठीक है, जब हम AWS में आते हैं तो कौन सा फायरवॉल यूज होता है आपको पता है? आई वांट द आंसर, कम ऑन टेल मी, थिंक जल्दी से सोचो। वाओ, ऑल ऑफ यू ऑल गिव द राइट आंसर। यस, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट। सो AWS में जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं ये हमारा एक्सटर्नल फायरवॉल होता है गाइस। ठीक है। आप सबने EMR किया है? हैव यू ऑल डन EMR? EMR देखा है आप सबने? EMR नहीं हुआ है? कोई यस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है। आई लाइक द वे विशाल गिव मी अ थम्स डाउन। ठीक है, तो नो, ठीक है। तो जब EMR होगा तो आई वांट यू टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स मोर, लाइक नोट इट डाउन समवेयर इन योर डायरी। अगर हुआ है तो वापस जाके एक्सप्लोर करो, नहीं हुआ है तो जब भी होगा make sure you pay a lot of attention to this particular topic, that is security groups. Okay, this is the external firewall that comes along with your the AWS platform. अब IP tables exactly क्या होते हैं? So IP tables are your internal firewalls. Internal firewalls. I'll tell you how. Now I have a switch here. Hold on. I have a switch here, okay? And many of us are connected to this switch. And you have one security group here,
acting as your external firewall. Sorry about this. Oversensitive है मेरा laptop, and I lost that stylus that comes with it, so it's getting so difficult for me actually. But yeah, I've ordered it, आ जाएगा वो. So yeah, this is the rack. Okay, now ये rack में समझो हमारे पास कुछ 20 machines है एक rack में. इसके अंदर होते हैं हमारे nodes. क्या होते हैं हमारे nodes? I'll just change the color now. Okay, इन nodes के साथ आते हैं आपके, हर एक नोड पे आते हैं आपके इंटरनल फायरवॉल, दैट इज योर आईपी टेबल. अब देखो, आपको ये पता है कि हम ऑलरेडी एक्सटर्नल फायरवॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो अब हमारा जो क्लस्टर है इसमें सिक्योरिटी किन किन कंपोनेंट से आती है? करो, गैस करो, चलो डालो चैट में. आई डोंट वांट यू ऑल टू गो टू स्लीप. अरे हाँ ना भाई, फायरवॉल तो है, बट कौन कौन से? वीपीसी है हमारे पास, NAT है, yes, ACLs है. Very good. Right. So you all know what I'm talking about. I hope it's not sounding like Greek and Latin to you. You all know basically what I'm talking about. ठीक है. तो अभी ये जो इंटरनल फायरवॉल होते हैं, तो अभी आप ये देखिए कि ये जो आपकी ये नोड्स है, ये 20 नोड्स में इस तरह से 20 फायरवॉल्स है. यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत सारे 20 है. अब वहां से जब वो कम्युनिकेट करेगा हमारे स्विच से, तो वो 20 नैनो सेकेंड्स लेगा. समझो 1 नैनो सेकेंड भी अगर लगता है वो फायरवॉल क्रॉस करके उसको आने के लिए, तो 20 machines will take 20 nanoseconds, and then they will go through this external firewall, and then they will reach us, and then the processing will be done. So basically what is this causing? जब हमारा एक्सटर्नल इतना सिक्योरिटी ऑलरेडी हमारे पास है, तो डू वी रियली नीड दिस लिनक्स लेवल फायरवॉल? All it is doing is creating latency. Latency means it is wasting little bit of time. समझो 3 रैक है, 3 रैक में 20 नोड्स है, टोटल वी हैव 60 मशीन्स, यानी 60 नैनोसेकंड्स, व्हिच इज 1 सेकंड का डिले. वी वांट मिनिमम लेटेंसी, वी वांट मिनिमम डिले. 1 सेकंड का डिले भी हमको नहीं चाहिए. तो व्हाट वी डू, हम बोलते हैं भाई ये जो आईपी टेबल्स है इनको आप कन्वीनियंटली डिसेबल कर दो, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लस्टर बहुत ज्यादा सिक्योर है, क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो इट कम्स अलोंग विद द सिक्योरिटी. टाइम कम करे यूज होगा, टाइम बचेगा, लेटेंसी कम होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी. सिंपल सी बात है. एवरीबॉडी लाइक्स अ पर्सन हु इज एफिशिएंट. लाइक आप 99% होल्डर हो, लेकिन आप 4 घंटे लगाते हो पेपर कंप्लीट करने में, और इवेंचुअली आपका पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है. You know every answer on that question paper, but you take 4 hours to complete the paper. But on the other side, there is this person who takes 3 hours to complete that question paper, and he is able to complete all the answers. Though he is not bang on, though he does not know all the answers very well, पर उसको 80% मिल जाता है. तो कौन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? किसको प्रेफर करेंगे लोग? लोग उसको प्रेफर करेंगे जो काम खत्म भी करे, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस भी दे, लेटेंसी भी ना हो, और जो रिलायबल भी हो. एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो यहाँ पे हमको लेटेंसी खत्म करनी है, तो हमने क्या किया, जो हमारे आईपी टेबल्स है उनको हमने कन्वीनियंटली डिसेबल कर दिया. इसको हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी बोलेंगे. बेटर परफॉर्मेंस, मोर परफॉर्मेंस इन लेस टाइम, कम टाइम में ज्यादा काम बेसिकली. ओके, तो अब आपको अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ओके गाइस कम ऑन टेल मी, व्हाई डू व्हेनेवर यू डू द प्रीरेक्विजिट्स, व्हाई डू यू डिसेबल योर आईपी टेबल? विल यू बी एबल टू आंसर? कम ऑन, thumbs up, thumbs down. Yes, no, whatever will do. Amazing, very good. Yeah, we disable the IP tables. अगर आपने ये 2 वर्ड्स में आंसर दिया, to reduce latency, तो फिर आपको बंदा पूछेगा ही कि हाउ, तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा. सो जस्ट डोंट फिक्स दैट इन योर माइंड टू रिड्यूस लेटेंसी. ये पूरा जो मैंने इतना किया है ना, पूरा रामायण आपको सुनाया इतने अच्छे से, रिमेंबर दैट ऑल्सो, एंड रिमेंबर मी ऑल्सो व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स इन योर इंटरव्यू. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. या you do need to mandatorily disable IP tables for better performance. I mean, ठीक है. नहीं, वल्नरेबल तो नहीं होगा, डोंट वरी. हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है, ऐसी लिनक्स भी है हमारे पास, जो हम टेम्पररीली डिसेबल करते हैं फिर एनेबल करते हैं. आई एम कमिंग टू इट. होल्ड ऑन. यहां तक क्लियर? यू कैन, बट देन अगेन इट विल कॉज लेटेंसी. तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, देखो कुछ हाइजीन है. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चॉकलेट खा रहे हो, आपने उठाया वो चॉकलेट का रैपर और फेंक दिया घर में,
आई डोंट केयर, मेरी मम्मा उठा लेगी, मेरी मेड उठा लेगी, आई डोंट केयर। लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल, आप एक हाइजीनिक इंसान हो, तो आप क्या करोगे? वो रैपर उठा के डस्टबिन में डालोगे, है ना? कुछ लोग होते हैं जो नहीं केयर करते, दिल कम फ्रॉम आउटसाइड, दिल नॉट रिमूव देयर शूज आउटसाइड, वो शूज लेके पूरे घर में चलेंगे वो लोग, फिर उसके निशान सारे घर में आएंगे। एंड द मेड बेचारी जो क्लीन करके गई है, या अगर आपके मॉम या एनीवन इन द हाउस इज क्लीन, दे विल फील रियली बैड, यार मैंने इतनी मुश्किल से क्लीन किया, एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन। सो किसको प्रेफर करेंगे घर वाले? वो बंदा जो शूज बाहर निकाल के घर को साफ रखता है, या घर में जूते लेके घूमता है? सिंपल सी बात है। तो उसको डिसेबल करना ये आपका एक हाइजीन प्रैक्टिस है जो आप करते हो और आपको करना है। तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी डिसेबल इट। आई होप अभी लोग मेरे को ये नहीं बोलेंगे, नहीं भाई हमको तो रैपर वही फेंकना है, हमको डस्टबिन में नहीं डालना है। नहीं डालो, आपके हाइजीन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगा, आपकी लेटेंसी बढ़ेगी। आई बात समझ में? ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? लेट्स कम टू द स्क्रिप्ट नाउ। तब तक देखते हैं इसका हो गया है क्या। देयर यू गो, कैन यू सी दिस? प्री रिक्विजिट चेक्स, जल्दी से ये देख लो। हमने स्क्रिप्ट रन की थी, पता नहीं उसको पहले क्या हो गया था, मुझसे नाराज हो गया था वो, इट जस्ट स्टॉप्ड समहाउ, आई हैड टू किल द प्रोसेस। Yeah, the smoke test is done. Can you see all this green, 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 pass, 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 सब पास है ना? तो इतना इजी है, लेकिन इसको समझना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने समझा कि आईपी टेबल्स हम क्यों डिसेबल करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं IPv6 पे। सो फार सो गुड गाइज, ऑल ऑफ यू ऑल आर अवेक? आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू ऑल टू डेथ। थैंक यू। और जो सो गए उनको गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। नेक्स्ट ले रहे हैं हम IPv6। Who's going to tell me why do we need to disable IPv6? देखो, if you read, wget से हम ये लेके आए हैं और हम इसको डिसेबल कर रहे हैं। There you go, 100% disabled। क्यों डिसेबल करते हैं IPv6 को? Come on। हाँ, हम डिसेबल इसलिए करते हैं कि हमारा जो ये फ्रेंड है, या प्यारा सा फ्रेंड है हमारा हदूप, ये केपेबल ही नहीं है, IPv6 के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। इट इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग IPv6। तो हम क्या करते हैं भाई, ये फीचर को हम डिसेबल रखेंगे, है ना? तो IPv4 को हम इनेबल रखेंगे, IPv6 को हम डिसेबल रखेंगे, दैट इज इट। अभी हदूप 3 में IPv6 आने वाला है। हदूप 3 जो है वो IPv6 का कैपेबिलिटी लेके आएगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर होगा नहीं होगा, हुआ है, ये बात का डिस्कशन है, दैट वी विल सी व्हेन वी स्टडी हदूप 3। एट प्रेजेंट याद रखो कि IPv6 को डिसेबल किया जाता है बिकॉज इट इज नॉट इन यूज। फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, हदूप डज नॉट कम विद द पोटेंशियल टू हैंडल IPv6 so far। Okay। I guess it was 2023 of one, but I think you updated अभी अगर 2040 है तो I'm not sure। I would not comment on it if I am not sure। Next, तो ये तो आपको पता चल गया कि हमारी स्क्रिप्ट बड़ी प्यारी है, एक कमांड में फायर हो जाती है और रन हो जाती है। Just understand why we are doing what we are doing and you guys are sorted। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, that is disable SE Linux। What is SE Linux? Who can tell me what is SE Linux? Come on. Put it up in the chat. Come on, quickly. Security enhanced Linux, something, you know. Secured enhanced Linux. That is SE Linux. Nobody's going to ask you that full form. Just to know, just for your knowledge, okay? Secured and enhanced Linux. अब क्या है ये, क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? तो इसको लेमैन टर्म में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि चलो आपने एक नया घर लिया है, ओके? जस्ट इमेजिन योर पर्टिकुलर दिस मशीन एज अ न्यू हाउस, ओके? न्यू हाउस। अभी यहाँ पे will you like just move into a house, or will you need a lot of people initially to help you with your furniture, with your cleaning, with your painting, with your fixing, wirings and everything? Yes, you will need a lot of help।
Hi. Sorry. My God, my throat is very bad. I just put a lozenge. So, where were we? याद दिलाओ मुझे, कहा थी मैं? हाँ हाँ, वही लिया। ऐसी लिनक्स पढ़ा रही थी, पता है? Where was I? Exactly. We will need a lot of people. Yeah, we will need a lot of people. तो आपके घर पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा, आपके मस्त बंगलो है आपका, बहुत अच्छा सा, एकदम लैविश सा, वहां पे आपने एक सिक्योरिटी गार्ड हायर किया है, तो आप उस सिक्योरिटी गार्ड को ये बोलोगे क्या कि भैया जी किसी को भी आने नहीं देना, पहले आप वो जो माई गेट ऐप है वहां से मुझे कॉल करना, एंड देन यहाँ से मैं अप्रूवल दूंगी और तभी आप सबको आने देना? विल यू डू दैट फॉर एनी पर्सन एंड एवरी पर्सन कमिंग इनटू योर हाउस टू हेल्प यू? ये कन्वीनियंट रहेगा क्या? दैट्स ऑल आई वांटेड टू नो. No, it is not convenient. Why? Because so many people are walking in and out of your house. तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटी गार्ड को बोलोगे भैया जी आप एक काम क्यों नहीं करते, एक 2 घंटे के लिए आप छुट्टी पे चले जाओ, जाइए आप चाय वाय पी के आइए, आज का एक दिन आप किसी को भी कुछ मत पूछिए, लेट देम कम, लेट देम डू देयर जॉब एंड लेट देम गो. मेरे घर में कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है फिलहाल रखा हुआ, नो पीपल आर स्टेइंग देयर, तो उनको अपना काम करने दो. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी डिसेबल एसई लिनक्स. ये लिनक्स का सिक्योरिटी, एक लिनक्स का फायरवॉल होता है, इसको डिसेबल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी वालों को कर्नल से कम्युनिकेट करने ही नहीं देता. एज वी ऑल नो, हडूप इज अ थर्ड पार्टी ऐप. इसको इंस्टॉल करना है, उसको कर्नल से कम्युनिकेट कराना है, तो आपको ऐसी लिनक्स को डिसेबल करना पड़ेगा. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आप याद रखेंगे कि भैया जब आप हडूप को इंस्टॉल कर चुके हो, when you will successfully install Hadoop, इसके बाद आपको दोबारा से as per Cloudera का रिक्वायरमेंट, Cloudera का सजेशन, Cloudera का क्या बोलते हैं, उनका जो एक सलाह है उसके हिसाब से आपको इसको दोबारा इनेबल करना पड़ेगा. तो जैसे आप बोलते हो कि सिक्योरिटी स्टेक पे जाएगी क्या? नहीं जाएगी. आप क्या करोगे, जैसे आप डिप्लॉय कर रहे हो हदूप को, तो तब उसको डिसेबल रखोगे. जब मैं घर में, अब तक मैं घर में रहने नहीं आई हूँ विद माय फैमिली, तो मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी दी है टू वेट, let people come in, let the third party apps get deployed and installed, and once that is done, कर्नल लेवल चेंजेस हो गए, रिबूट हो गया, उसके बाद आप जाके आपके एसी लिनक्स को वापस से इनेबल करोगे. देखो, एसी लिनक्स का इनेबलिंग होना इसलिए जरूरी है कि आपके जो सोर्सेज होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा, हाउ मेनी ऑफ यू ऑल वुड लाइक टू पुट अप, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा? बताओ मुझे क्या सोर्सेज ऑफ डेटा है. हाँ, तो आप अरे डोंट गिव मी हाउ मेनी, देयर आर मेनी, देयर आर मेनी. नेम अ फ्यू, कम ऑन. हाँ, आपकी सीआरएम है, सेंसर्स है, वेरी गुड. आपका सोशल मीडिया है, आपका आरडीबीएमएस है, मेनी मोर. तो ये जो डेटा आ रहा है, इसमें दो टाइप का डेटा आता है गाइस. एक होता है कंप्लायंस डेटा और दूसरा होता है नॉन कंप्लायंस. कंप्लायंस डेटा जो होता है, ये बहुत जरूरी है कि जब आपके पास कंप्लायंस डेटा आ रहा है तो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, वो बहुत सिक्योर रखना पड़ता है उसको. तो इस डेटा को आप एसी लिनक्स एनेबल रखना बहुत जरूरी है. तो जैसे यहाँ किसी ने डाला है कि बैंकिंग डोमेन है, मेडिकल है, हेल्थ केयर है, तो यहाँ पे किसी का बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, so at that time it is very important that this data should be secured. At that time you need to enable SE Linux. So Cloudera's recommendation is that you need to enable SE Linux. So once your Hadoop is deployed, तो हम उनको क्या बोलते हैं भाई, डेफिनेटली हम enable करेंगे, पहले हमको डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली कर लेने दो. Once SE Linux is successfully deployed, once Hadoop is successfully deployed, we will enable it. तो इस तरह से याद रखना कि जो लोग आपके घर में आ रहे हैं वो आपके मूवर्स एंड पैकर्स है. ये लोग आके चले गए, घर सेट कर दिया, अब आप सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे भैया जी अब कोई नहीं आना है, अब ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो बिफोर ब्रिंगिंग योर कंप्लायंस डेटा ऑन योर क्लस्टर, प्लीज डू मेक श्योर कि आपका एसई लिनक्स इनेबल्ड है. एनी डाउट सो फार? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? नॉन कंप्लायंस डेटा है तो क्यों रखना है फिर? इट डजंट मैटर. But it's a good practice, as I told you, it's a good hygienic practice to enable it later. Done? All clear? Amazing, amazing.
सो गए आप लोग, जाग रहे हो? ऑल गुड? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? What are we going to see next? Next is, do you all need a break or something? Like a 30-second break or 1-minute break? No break? Okay, great. No break, so no break. Not at all? Okay, great. अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम डिसेबल टीएचपी वाला इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, ये कमांड फायर करने से डिसेबल नहीं होना है। हाँ, वी आर जस्ट ये लेकर आ रहे हैं बाइनरीज, हम बाद में जब हम स्क्रिप्ट रन करेंगे तब ये डिसेबल होगा। ओके डन। सो ये देखो, ये आ गया, ये डाउनलोड हो गया। डब्ल्यू गेट से हम सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं सारी यूटिलिटीज। ओके, सो अब टीएचपी क्या होता है? एनीवन नोस? किसी को ट्राई करना है टीएचपी क्या है? यू ऑल कैन गूगल, आई डोंट माइंड। ऑन द गो कोई ऐसे ही पूछ ले आपके फ्रेंड को, बता भाई टीएचपी क्या होता है, तो आप क्या करोगे? वहां पे खड़े होके सोचोगे यार मुझे तो ये नहीं पता है। If I would be in your place, I would quickly browse धीरे से गूगल में डालूंगी what is THP, tell me, and I would like act smart there, and I just know what it is. You know, it's just like transparent huge page. Yeah, transparent huge page compaction. Very good. So I can see few people are doing exactly what I would have done. अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए पेंट पे। Just pay a little bit of attention. Give me some time. Allow me to explain this to you. If I'm able to explain well and good. फिर भी नहीं समझा है तो I'll re-explain till you understand. अभी ये हमारा एक प्रोसेसर है, ये है आपका रैम, और यहाँ पे आपका HDD यानी हार्ड ड्राइव है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अभी हम मैप रिड्यूस रन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो आउटपुट है, यहाँ पे एक जॉब हमारा रन हुआ। ठीक है, और देखो गाइज, पहले जमाने में जो रैम होता था, अभी तो खैर बहुत अवेलेबिलिटी है क्लाउड होने से वगैरह, और रैम का कोई शॉर्टेज नहीं है, यू नो, बिकॉज वी आर रेंटिंग ऑल दीज रिसोर्सेज। बट इन अर्लियर डेज रैम वाज वेरी 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 एक्सपेंसिव, बहुत महंगा कंपोनेंट था ये, तो इसको बहुत ध्यान से यूज किया जाता था। तो जो रैम होता है ये हमारा हॉट सीट है। ओके, यहाँ पे जो करंट यूज में है वही बैठेगा रैम में, वही बंदा बैठेगा। अदर देन दैट जो लोग बैठेंगे वो हॉट सीट के पीछे, वो जैसे लोग बैठते थे ना केबीसी में, आप देखते हो हॉट सीट पे जो बंदा करंटली खेल रहा है वही बैठेगा, बाकी के लोग पीछे बैठेंगे। तो जो बाकी के जो हमारे एप्स है वो बैकग्राउंड में रहते हैं, लेकिन जो करंटली यूज हो रहा है ऐप वो आपके इस रैम में होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल इस तरह से ले लो, आपका ये जॉब है, ये जॉब रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जॉब का एक आउटपुट आता है। मैप रिड्यूस कैसे वर्क करता है आपको मैंने बताया था कि ये मैपिंग होगा, ये सब चीजें इस तरह, ये आउटपुट आ गया, ये आपका इंटरमीडिएट आउटपुट है। ये जो आउटपुट है आपका इंटरमीडिएट आउटपुट है, तो उसको हम टेम्पररी यहाँ पे इंटरमीडिएट आउटपुट को स्टोर करते हैं। फिर हमारा रिड्यूसर आता है, वो यहाँ से वो इंटरमीडिएट आउटपुट लेगा, शफल करके उसको वापस रैम पे लाके प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका ये जो HDD है या हार्ड ड्राइव है, इसका एक पोर्शन हमने टेम्पररीली रैम की तरह यूज किया। वी यूज अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ योर हार्ड ड्राइव एज रैम। टेम्पररी हमने अपना जो इंटरमीडिएट आउटपुट है उसको टेम्पररी स्टोरेज वहां पे रखा है, बाद में उसको हम फ्री कर देते हैं। सो दिस इज अ फीचर ऑफ लिनक्स बेसिकली, कि भाई तू जो रैम है यहाँ का, जो आपका जो भी आउटपुट है उसको आप इधर HDD में टेम्पररी रैम में रखो और बाद में लाओ। तो इसमें क्या होता है कि इट गेट्स द फ्रीडम। अगर आपका THP ह्यूज पेज कंपैक्शन जो है ये enabled होता है, तो your Linux gets the freedom to pick any particular chunk of data and put it on your hard drive. Getting it? तो ये
एक जगह से दूसरी जगह आपका डेटा मूव होने का प्रॉब्लम होता है, और जब आपका रिड्यूसर आएगा और इट विल ट्राई टू लुक फॉर दिस चंक ऑफ डेटा, इट विल गेट कंफ्यूज कि पता नहीं कहाँ चला गया. रिमेंबर दिस डायग्राम गाइस, ओके. सो इट विल गेट कंफ्यूज कि वेयर इट इज गॉन, एंड उसको वो ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो टीएचपी वाला फीचर है इसको हम डिसेबल कर देंगे कि भाई नहीं करना है हमको इसको. जो डीफ्रेगमेंटेड हमारे जो चंक्स ऑफ डेटा है उसको हमको डीफ्रेगमेंटेड ही रखना है. आई वॉन्ट टू कीप माई थिंग्स वेयर दे आर, लाइक यू नो आई एम वेरी गुड टू यू ऑल, but at times I get very frustrated, especially early in the morning. Like, I'm sharing a very personal thing, but when I wake up in the morning, that half an hour, it is like it is a rule in my house, don't talk to me. वो पहले 30 मिनट कोई मुझसे बात ना करे. I want to focus on my things. I want to see where my things are they in their right places, will I be able to find my things in time. क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना है, I want to hit a particular place on time. I just want to like touch base someone and move forward. So it's very important that I find my watch in its place, I have my goggles in their place, I have my phone in its place. No, not a hungry stomach, but I am that way. वो पहले 30 मिनट from the time I start to brush till I am all set and ready, I am in a very 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 difficult mood. So I have instructed my kids and my mom and everyone, don't talk to me. वो आधा घंटा बात मत करो, आपका भी दिन अच्छा जाएगा, मेरा भी. इसमें क्या होता है, the moment I step out of my house, I have kept certain things somewhere. When I come back, एक भी चीज मुझे जगह पे नहीं मिलती है. मैंने अगर उसको राइट में रखा था तो लेफ्ट में मिलेगी, लेफ्ट में लगा था तो वार्डरोब में मिलेगी, वार्डरोब में रखा था तो मेरे किसी बैग में मिलेगी. सो दैट इज सो डैम फ्रस्ट्रेटिंग. यही होता है हमारे हदूप के साथ. उसको ऐसा है कि भाई मैंने जो चीज फ्रैगमेंटेशन करके जहां रखी है. फ्रैगमेंट मतलब क्या, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस. वी ऑल नो दैट हदूप इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना. डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, छोटे छोटे पीसेस में वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोसेस करेगा. तो वो बोलता है मैंने जिसको जहां रखा है मुझे वही चाहिए. आई ऑल्सो बिहेव लाइक हदूप इन द मॉर्निंग. मुझे नहीं उसको डिफ्रैगमेंटेशन करना है. बट टीएचपी क्या करेगा, इट इज लाइक माय मम. अरे ये लड़की ने वॉच यहाँ छोड़ दी, फोन यहाँ छोड़ दी, चार्जर ऑन रख दी, एंड शी इज जस्ट केप्ट हर दुपट्टा देयर एंड टॉवेल हियर, एंड शी विल जस्ट पिक अप एवरीथिंग एंड पुट इट इन इट्स राइट प्लेस. As much as I appreciate what she does for me, because she's my mom, it is a thankless job actually. But as much as I appreciate what she does for me, at the same time मुझे नहीं चाहिए भाई defragmentation. I want to leave things where they are. That is what Hadoop says. तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, जैसे आपको करना है ऐसे करते हैं. टीएचपी को डिसेबल कर देते हैं, बिकॉज मेरे पास रैम की तो कमी नहीं है. मेरे पास तो बड़ा घर है, मेरा अपना रूम है, मेरे 2-4 रूम में मेरे को जो चीज जहां फेंकनी है मैं फेंकूंगी. डोंट बॉदर. ठीक है. दिस इज द लेमैन कॉन्सेप्ट ऑफ टीएचपी. आपको टेक्निकली और नॉर्मल वेज में भी समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दिया. या ओसीडी, आई नो आई हैव अ लेवल 4 ओसीडी. या सो टीएचपी वर्क्स लाइक द मम. तो हम मम को बोलते हैं मम्मा प्लीज डिसेबल हो जाओ थोड़े टाइम के लिए. ऑल क्लियर गाइस? यहां तक समझ में आया आपको? Oh my God, no thumbs up, no thumbs down, no yes, no, no. Anyone who has not understood, you let me know, guys. Is the speed okay with you all? Are you all comfortable? Are you all enjoying? अब इसके बाद दो ही कॉन्सेप्ट है, 2-3 और कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, एंड देन वी आर डन. उसके बाद तो वी आर नियरली देयर एक्चुअली. So, do you all need a 2-minute break? Do you all want to grab a cup of coffee, cup of tea? Acha, I need a break, guys. 30 seconds ka. I'll just drink some water and come back. Can you excuse me for next 30 seconds? Thank you. अभी आती हूँ, उसके बाद हम आने वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, एंड देन यू ऑल विल बी फ्री फॉर द डे. अब फिर आराम से प्रैक्टिस करना. ओके गाइज, आई एम बैक. आर यू देयर? ओके, चलो. आर यू ऑल रेडी? एम आई क्लियर? इज देयर एनी डिले, एनी ब्रेकिंग ऑफ वॉइस? ऑल क्लियर, राइट? अमेजिंग, अमेजिंग. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं अभी. व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? टेल मी, कम ऑन. The next concept is LZO. Okay, okay, LZO. ये तो खैर बहुत सिंपल सा है आपको याद रखने के लिए. LZO.sh. यहाँ आ गए, एंटर. ठीक है, ये भी हो गया. तो LZO क्या होता है?
देखिए हर जैसे आप को ये पता होगा कि स्नैपी टूट इज द डिफॉल्ट कंप्रेशन यूज्ड इन हडूप, स्नैपी टूट. ओके, व्हेन हडूप कंप्रेसेस वी यूज स्नैपी टूट. लिनक्स यूजेस LZO. गाइस एक चीज आप याद रखना, जब भी आप हडूप एंड लिनक्स ये दो नाम सुनते हो, तो रिमेंबर वी आर डीलिंग विथ टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स हियर. ओके, हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ डील कर रहे हैं. एक है हमारा लिनक्स एंड दूसरा है हमारा हडूप. अब इन दोनों में क्या फर्क है? हु कैन टेल मी? Why are you on PHP? Like, I don't understand. PHP is a programming language. Are you into development or something, Akash? Please pay attention here, guys. मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ. What is the difference between Linux and Hadoop? Hadoop is a data operating system, and what about Linux? Linux is a system operating system. Okay, बाहर से आता है sysops and data ops आपका. Very good. Whoever answered that, I really liked it. Or who's going to tell me what is the file system of Hadoop and what is the file system of Linux? File system of Hadoop is DFS, and what about the Linux? ext4. Whoever answered that, amazing. Okay. तो ext4 आपका लिनक्स का ये है फाइल सिस्टम होता है, राइट. एक स्मॉल साइज है फाइल सिस्टम जो अपना ext4 है. हडूप का बड़ा फाइल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है. तो जैसे मैंने आपको अभी THP एक्सप्लेन किया कि 32 TB का एक आपका नोड है. समझो ऐसे आपके पास 4 नोड्स है, उसके अंदर 8 TB ऐसे 4 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं. तो वो क्या करेगा कि आपको जो रेप्लिकेशन फैक्टर आने के लिए, 11/9 ड्यूरेबिलिटी आने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा डेटा यहाँ वहां. मतलब बेसिकली क्या करेगा, तो फ्रैगमेंटेशन करेगा. हडूप THP जो है ये आएगा और ये डीफ्रैगमेंटेशन करेगा. यहाँ पे ये बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ चल रही है जंग दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में. पहले वाला आके बोल रहा है मैंने इसको यहाँ रखा वहां रखा वहां रखा, और जब भी आप कोई पर्टिकुलर डेटा रिट्रीवल का कमांड एंटर करते हो तो वो डेटा का ब्लॉक लाने के लिए एक प्रॉपर जॉब रन होता है बैकग्राउंड में. एक मैप रिड्यूस का जॉब रन होता है, वो जाता है वो पर्टिकुलर एड्रेस पे, फिर वो डेटा नोड्स पे जहाँ पे डेटा है वहां से डेटा लेके आके आपको बताता है. लिनक्स में all Linux needs its inode. inode एड्रेस डालो, आपको इट विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि उसके पास THP है, वो सारा फ्रेगमेंटेशन करके रेडी रखता है. देखो मतलब वो उस घर के नौकर की तरह जिसके पास सब कुछ है. घड़ी चाहिए ये हिसाब, रुमाल चाहिए ये हिसाब, सॉक्स चाहिए ये, ऑल इन वन प्लेस, वेरी सॉर्टेड. गेटिंग इट? अब आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब हम आते हैं LZO पे, जहां से मैंने जंप किया था वापस THP पे. LZO is the compression mechanism that is used for Linux. ठीक है, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में? What are we doing to LZO? Did you see that? Why do we need LZO? हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम why do we need LZO? एक कंप्रेशन है लिनक्स का, पर आपके पास ऑलरेडी हडूप इज कमिंग विद दिस स्नैपी टू, तो हम क्यों LZO हमको चाहिए? देखो जब आप solution architects बन जाओगे, hopefully tomorrow I am going to see all of you all as solution architects and even better someday. Okay, तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, वो अभी भी आने वाला है जब आप प्रोजेक्ट करोगे एक्चुअली अपना. तो आपके पास आएगा या इंशाल्लाह you will have cluster planning and you will have capacity planning and all this. Okay, so हमारे पास कंप्रेशन का ऑप्शन आता है कि भाई कंप्रेस करने के बाद, अभी समझो फॉर एग्जांपल आपके पास 3 TB का डेटा है, आपने उसको कंप्रेस किया और आपने उसको स्नैपी टूल से भी कंप्रेस किया, उसको LZO से भी कंप्रेस किया, या कोई साउंड फाइल है लाइक MP3 फॉर्मेट में है या JPG फॉर्मेट में है. जब भी आप उसको कंप्रेस करते हो, एक एल्गोरिथम रन करते हो उसके ऊपर, एक मैकेनिज्म रन होता है उसके ऊपर, और उसका कंप्रेशन हो जाता है. तो क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस when you compress something? साइज रिड्यूस होता है. साइज रिड्यूस होने के बाद क्या होता है, उसको स्टोर करने के लिए क्या लगेगा, कम स्पेस लगेगा. लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड, साइज इज रिड्यूस्ड एंड यू हैव कंप्रेस्ड इट. कंप्रेस करने के बाद कम स्पेस में वो स्टोर हो जाएगा. तो आपका जो 3 TB का डेटा है वो अभी 1 GB पे आ जाएगा. तो आप लाइक
इमेजिन 3 GB का डेटा 1 GB पे आ जाएगा, तो इतना कंप्रेशन होता है LZO से और स्नैपीट्यूड से। तो अब आप इमेजिन करो, आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो, तो आपने बोला नहीं हमको 3 GB लगेगा, लेकिन अब आपने उसमें कंप्रेशन वाला फैक्टर ऐड कर दिया। आपने बोला चलो हम LZO भी यूज करते हैं, हम स्नैपीट्यूड भी यूज करते हैं और इसका कंप्रेशन करते हैं। कंप्रेशन होने के बाद सर आपको 3 GB का पैसा नहीं भरना है, आपको सिर्फ 1 GB का पैसा भरना है, आपको स्टोरेज स्पेस सिर्फ 1 GB लगेगी। तो आपको क्या मिलेगा कंपनी से? आपको मिलेगा रिवॉर्ड, आपको मिलेगा रिकग्निशन, यू विल बी नोन एज एन एक्सीलेंट आर्किटेक्ट, तालियां मिलेंगी, राइट, यू विल बी पेड वेल। सो आपको जब पूछा जाता है कि गाइज व्हाई डू वी नीड LZO, आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन करो कि सर आई एम इनटू कैपेसिटी प्लानिंग, एंड कैपेसिटी प्लानिंग में इतना डेटा है, इसको आपको इतना पे करना होता है, दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा को मैं LZO लगा के कंप्रेशन करा के आपको ये डेटा 75% या 70% रिडक्शन में इतने स्पेस में आपको फिट करा के दूंगा, और उसके बाद यू विल बी वेरी हैप्पी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया, राइट? आई लाइक दीज वर्ड्स दैट आर कमिंग अप। सो दिस इज बेसिकली अ कंप्रेशन मैकेनिज्म, दैट इज इट। तो मैंने आपको लॉन्ग इलेबोरेटेड वे में भी समझाया, मैंने आपको शॉर्ट वे में भी समझाया। एनी डाउट सो फार? आई ऑल क्लियर विद व्हाट LZO इज? नो डाउट? गुड, चलो समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? NSCD। NSCD, ओके ग्रेट। बिफोर आई एक्सप्लेन NSCD, लेट मी टेल यू, ये जो नीचे के तीन है ना, wget install tools, wget remove tune.sh and tune kernel, ये तीनों भी Cloudera का रिक्वायरमेंट है फॉर कर्नल ट्यूनिंग। तो यू डोंट गेट इनटू दिस टू मच, ठीक है? बस याद रखना कि ये तीनों हम कर्नल ट्यूनिंग के लिए करते हैं। आपको कोई पूछे तो इतना ही बोल देना, एंड दैट शुड बी इनफ। तो मैं फट से उसको कॉपी पेस्ट कर लूं, एंड देन आई विल मूव ऑन टू NSCD। One, two, and the last one is tune kernel. So all these three are just required and recommended by Cloudera for kernel tuning. Okay, remember that. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज योर NSCD। देखो आपने, मैंने वहां पे लिख के भी रखा है फॉर यू गाइस, NSCD.sh क्या होता है। तो इट इज योर नेम सर्विस। जब आप हाई अवेलेबिलिटी होता है आपके पास और नेम सर्विस में इसका यूज होता है। जस्ट एक्सप्लेन, गिव मी अ मिनट। डन? हाँ डन, ठीक है। तो देखो, अब आपको एक अच्छा सा लेमैन टर्म में इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आई शुड बी एबल टू गेट अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपके पास पहले जमाने में guys, why are you so worried about full forms? I can see everybody is so, like, worried about the full form. If you really want to know the full form, guys, Google it now. It has a very, like, as a stupid say something, Lempel Zivoberum or something. I don't know. I don't know that what it stands for. We just call it LZO. It's an algorithm for compression. I mean, when you are an experienced resource and when you will enter the market as an experienced resource, nobody's going to ask you, hey, LZO ka full form bata. You're not into college. You're not into university. You're not writing a theoretical paper, guys. You're entering the market as an experienced resource. Please stay away from all this. Okay? I mean, it's good to know. Google it. Okay, no distractions, please. Let me get back to the point. Okay, kahan the hum? Remind me, come on. What was I? Was I discussing something about Hadoop 3? I was teaching single node. What was I teaching? NSCD, yeah, right, NSCD. NSCD क्या है? तो अपने पास पुराने जमाने में एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, right? Amit is like bang on. After is also like good awake. टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी में अभी फॉर एग्जांपल 1000 कॉन्टैक्ट्स है। वो 1000 आपको यूज होते हैं क्या सारे के सारे? काय को टेलीफोन डायरेक्टरी? यू हैव योर ओन फोन डायरेक्टरी इन योर फोन। कितने फालतू के कॉन्टैक्ट्स है आपके पास? लाइक इफ आई सिट एंड काउंट, मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं जिंदगी में कभी इनको कॉल किया नहीं, जिंदगी में कभी मैं कॉल करूंगी नहीं ये नंबर्स पे। व्हाई हैव आई इवन यूटिलाइज द स्पेस एंड स्टोर्ड ऑल दीज नंबर्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई गो ऑन स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग, और बस है इतने सारे कॉन्टैक्ट्स है। तो मैं क्या करती हूँ कि लेट मी मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स दैट आई फ्रीक्वेंटली कॉल। कुछ पैसे मांगने वाले हैं बस, योगित पाटिल इज सेइंग, कुछ तो बस पैसे मांगने वाले हैं। अरे अब तो आपके पैकेजेस लगने दो, बहुत पैसे मांगने वाले मिलेंगे आपको।
हाँ, तो we have certain favorites, you know, like we call them frequently, like I call my mom every now and then, or I'll call my friend every now and then. So ये हमको फटाफट चाहिए होते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं, एक लिस्ट बना के रखते हैं कि these are the contacts I frequently visit. उसी तरह से आपका NSCD या आपका SSSD काम करेगा कि it will sort of maintain a list of the domains where you have visited frequently, ताकि जब अगली बार आप वहां पे जाओ तो वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी में या कहीं और जाके चेक करने में टाइम वेस्ट ना करे, फटक से वहीं से आपको रिट्रीव करा के दे दे। तो आपका जो कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो बचेगा। तो आपको डायरेक्टरी में ए में जाओ, फिर ए में AB में जाओ, ABI में जाओ, एंड ABID में जाओ, एंड देन आई विल फाइंड से कॉन्टैक्ट ऑफ आबिद। आई डोंट नीड टू डू दैट। मेरे पास फट से कहीं तो एक स्पीड डायल में सेव्ड होगा। तो इट इज लाइक अ कैशे। वो क्या करेगा, नेम सर्विस जो है वो वहां के जो होस्ट है उनको कैशे करके रखेगा, बेसिकली आपके एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करने के लिए। क्लियर? तो जब आप मल्टीपल एक ही पर्टिकुलर होस्ट को कॉल कर रहे हो, एक ही पर्टिकुलर होस्ट पे आपको जाना है, तो आपका जो टाइम है वो स्पीड अप हो जाएगा, फटाफट आप जा पाओगे, इजी हो जाएगा आपके लिए, टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बचेगी। गाइस, दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। डेटा हर बार अवेलेबल रहना चाहिए, डेटा फटाफट मिलना चाहिए, रिजल्ट जल्दी आने चाहिए, जॉब्स फेल नहीं होने चाहिए, हर चीज अप एंड रनिंग होनी चाहिए, और हर चीज फास्ट होनी चाहिए। इसको सबको सम अप करके एक वर्ड आता है एफिशिएंसी, जिसके लिए हम इतना सब करते हैं। जितना एफिशिएंट आपका क्लस्टर, उतना अच्छा आपने क्लस्टर सेटअप किया, उतने अच्छे आप आर्किटेक्ट, और जितना अच्छे से आप मैनेज करोगे उतने अच्छे आप एडमिन हो। हाँ, डन। दिनेश, was this concept very fast or all the concepts were done quickly? Quickly tell me. If you want me to repeat, I'll repeat it for you, dear. No problem. No, I didn't get that, Dinesh. Just elaborate. You said all over fast, means all over मैंने बहुत fast समझाया और सारे concepts fast समझाए. Anybody needs a repeat? Okay, Shahid, I'll repeat it for you. Dinesh is not answering now. Okay, whatever. I'll just repeat it for you again. क्विकली आपको टेलीफोन डायरेक्टरी वाला एग्जांपल समझ में आया कि 1000 कॉन्टैक्ट्स है, उसमें से आपको 10 ही लगते हैं, तो वो 10 कॉन्टैक्ट्स को आपने एक फटक से शॉर्ट लिस्ट बना के रखा। जब जब आप वो 10 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करोगे जो कि आपके होस्ट्स है, तो आपने कैशे बना के रखा है, कैश करके रखा है उनको एक छोटी सी लिस्ट में। whenever you want a contact number of that particular person, you do not need to open the entire मोटा सा पीला सा टेलीफोन डायरेक्टरी। Getting it? So basically, it will cache your name service hosts so that whenever you want to speedily execute and reach a particular host, you will be able to do it efficiently and quickly. Anything that is unclear? So guys, triple SD, that is SSSD, that is basically you can also say it is an authentication and interaction mechanism, और NSCD जो है ये कैश करेगा आपके नेम सर्विस को। तो ये these both they work similarly, भाई बहन है वो लोग, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है ट्रिपल SD का भी और NSCD का भी। Anything that is unclear, do let me know. Can I move forward, please? Give me a thumbs up so that I can jump to the next concept. Amazing, thank you. हाँ, तो इसके नीचे के 3 हमने कर दिए। Let me go through the script. Anything else? NTP. Yeah, this is again a very interesting concept. NTP पे आते हैं हम। How many of you all know what NTP is? SSSD का फुल फॉर्म इससे पहले कि कोई पूछे मैं पहले ही बता दूं, इट इज सिस्टम सिक्योर्ड सर्विस डोमेन। ओके, सर्विस डीमन, आई एम सॉरी, नॉट डोमेन, डीमन। System secured service daemon. Basically, we use it to access remote directories and for quick access, you can say. Okay. अभी NTP पे आता है। NTP, आप मुझे बताइए इंडिया कौन से टाइम जोन को फॉलो करता है? IST, Indian Standard Time.
ठीक है, अभी प्लीज यहाँ पे गौर कीजिए, प्लीज लुक हियर। कौन सा वाला ब्रश यूज करूँ, आई डोंट लाइक एनी एक्चुअली। ठीक है चलो, ये यहाँ पे है, दिस इज ये अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2, अवेलेबिलिटी जोन 3। ठीक है, और मैं यहाँ से, ये समझो मेरा नेम नोड है, यहाँ से मैंने डेटा कॉल किया, तो एक डेटा नोड मेरा समझो इंडिया में है, एक को मैंने ले जाके रखा यूके में, और एक को मैंने रखा यूएसए में। पॉसिबल विथ क्लाउड? इज दिस पॉसिबल? यू थिंक दिस इज पॉसिबल? स्क्रीन इज स्टक? नो, किसी और की स्क्रीन रुक गई है। आई मीन सी, कैन यू सी दिस हैपनिंग? नॉट स्टक, ओके ज्योति, थैंक यू। या जलेबी। ठीक है, हटा दी मैंने जलेबी। सो मेरे 3 डेटा नोड्स अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है, पॉसिबल है राइट? अब ये आपको ऐसे लगता है कि यहाँ का इंडिया का टाइम अलग होगा, यूके का टाइम अलग होगा, और यूएसए का टाइम अलग होगा? हाँ। अब ये जब हार्ट बीट्स भेजेगा, मैं इससे कुछ मंगाती हूँ, आई विल से आर यू अलाइव, जस्ट लेट मी नो। So this one will send a heartbeat, this one will send a heartbeat, this one will send a heartbeat. They'll say yes, we are up and running and we are alive. तो जब ये होगा, तो आपको लगता है कि इनका जो भी हार्ट बीट आएगा या जो भी डेटा यहाँ से आएगा, वट एवर कम्युनिकेशन जो होगा, इसका जो टाइम स्टैम्प है वो सेम रहेगा? सबका टाइम स्टैम्प सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? अलग अलग रहेगा, राइट? अब क्या ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट नहीं करेगा? क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा? तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो लोग एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आ गए, एंड दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडीसी, है ना, आई गेस यूडीसी। सो हियर बेसिकली देखो, हम ना कुछ लोग सोलार कैलेंडर फॉलो करते हैं, फ्यू फॉलो लूनार। like if you talk about Ramadan, Muslims they follow lunar calendar, few follow solar calendar, कभी उसके बाद आया Gregorian calendar। so इन सब के अपने अपने drawbacks है। like for example Gregorian that comes with a leap year। तो आपको पता होगा, I'm sure you might have heard about this, that once upon a time in the year 2000 I guess, Y2K बोल के एक आया था कि Y2K एक वायरस आया है, it will enter everyone's computer and all the data will be deleted। You remember that? It was only for data centers, it was not for our personal PCs, but this concept had knocked everyone's door। This fear of a virus entering our computers had come। So basically क्या है कि ये जो अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हडूप क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। तो उसमें जो मशीन्स है वो अलग अलग टाइम जोन्स में होते हैं, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में होते हैं। तो उन सबको एक कॉमन सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ एनटीपी, दैट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये इसका अपना ही टाइम होता है, इसमें जो आपका मिनट होता है वो 62 सेकंड का होता है, और सारे जो सर्वर्स होते हैं वो एनटीपी से सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो जो सारे टाइम स्टैम्प्स है वो एनटीपी के टाइम स्टैम्प्स होंगे, अलग अलग टाइम जोन के टाइम स्टैम्प्स नहीं होंगे। तो हमारा जो एनटीपी सर्वर है वो रहेगा, और आप हमारे मशीन्स पे एनटीपी क्लाइंट हम इंस्टॉल करते हैं, ताकि आपका जो एनटीपी वाला क्लाइंट है वो आपके एनटीपी सर्वर से कम्युनिकेट कर सके, और कम्युनिकेशन होने के बाद जब भी हार्ट बीट जाता है, जब भी डेटा का गिव एंड टेक होता है, जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं, एनटीपी मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, तो वो एक सिंक्रोनाइजेशन में रहे। गेटिंग इट? वो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में रहे और सबके टाइम स्टैम्प सेम रहे। तो एक एनटीपी होता है, एक क्रॉन डी होता है, CHRONYD। इफ यू कम हियर टू द स्क्रिप्ट, आई गेस वो है यहाँ पे, देखो ये ट्रिपल एस डी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे कहीं तो क्रॉन डी भी आपको दिखेगा, या कैन यू सी दिस यहाँ पे? तो दिस क्रॉन YD is nothing but the same concept that I just explained, NTP। You can use either one, आपको जो चाहिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अभी एनटीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गाइस? सेम कंट्री में है ना गाइस, तो भी आपको पता है क्या कि मुंबई के और पुणे के टाइम में 2 मिनट का डिफरेंस है।
कोलकाता के और पूना के टाइम में कुछ अराउंड 5-6 मिनट का डिफरेंस है। नहीं भरोसा आता है, गूगल इट। लेट मी टेल यू इवन अ बेटर एग्जांपल। डू यू नो बुर्ज खलीफा, ऑल ऑफ यू ऑल? हाँ, आप सब जानते हो बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सो वहां पे जब रोजा इफ्तार होता है, लाइक व्हेनेवर यू हैव दिस, यू नो, यू कंक्लूड द फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, द टाइम इवन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फ्लोर। जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो अलग टाइम पे इफ्तार करते हैं, और जो नीचे के फ्लोर है वो अलग टाइम पे इफ्तार करते हैं। तो इतना टाइम जोन चेंज होता है। आपको वो जीएमटी वगैरह सिखाया होगा स्कूल में, व्हेन यू ऑल वर लर्निंग this geography, latitudes and longitudes and how things change, and you know, why do we follow this Greenwich time? Because Greenwich में सबसे पहले sunrise होता है, and sun rises from the east. तो IST हम कोलकाता का टाइम follow करते हैं। IST is you know, calculated keeping Kolkata in mind, because sun rises from the east. ठीक है, समझ में आ गया आपके? और किसी ने मुझे पूछा कि सेम अवेलेबिलिटी जोन्स में सेम कंट्री में है तो क्या, तो आई आंसर्ड दैट आल्सो। एंड जनरली रेप्लिकेशन और 11/9 ड्यूरेबिलिटी के वजह से वी कीप द डेटा इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, इन डिफरेंट टाइम जोन्स, इन डिफरेंट डेटा सेंटर्स, एंड एट टाइम्स डिफरेंट क्लाउड्स, एंड नाउ वी हैव Kubernetes. So it's like a multiverse now. Yeah, let's not get into gravitational potential, energy and physics here. I am sure you understood the concept now. ठीक है, एनटीपी समझ में आ गया सबके? क्रॉन डी समझ में आ गया? एनटीपी एंड क्रॉन वाईडी सेम है। तो अब बचा कौन सा कॉन्सेप्ट, क्या बच गया? आई गेस मैंने आपको जो एक्सप्लेन नहीं किया है वो है स्वैपीनेस। और एक और चीज जो रह गई है मेरी, वो रही है, let me check, what have I missed? IP tables I explained, THP I did explain, root reserved space रह गया। So just 2 concepts more. Thank you for bearing up with me so far, and then you all are good to go. Ibrahim, this is not a security session, so I won't be visiting these MIT Kerberos points. I'm not going to throw any light there. The day we have a security session, I would certainly discuss on that. You wish I take more sessions, Yogit? Yes, certainly I will, hopefully, don't worry. So root reserved space क्या होता है guys? Any one of you all who is aware of root reserved space? क्या होता है? किसी को कोई idea है? Put it up in the chat. Yogit says no, Tanveer says no, Abdul, okay, none of you all know it, no problem. ठीक है, तो अभी look here, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो सब लोग, no problem, no problem. आपको सब आएगा तो मेरे को बड़ा टेंशन हो जाता है, व्हाट विल आई टीच इफ यू नो एवरीथिंग। नहीं आता है तो आई एम लाइक ओके ओके नाउ आई नो व्हाट टू डू। चलो ठीक है, तो ये हाँ ठीक है, ये एक रैक है, ये दूसरा रैक है, ये तीसरा रैक है। ये 40 भी मशीन हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू कीप इट टू 20। ओके, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 नोट्स है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी अनटाइडी, बट दैट इज मी एंड दैट इज हाउ आई एम, सो बेयर अप। कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। I tried my level best. I tried my level best to improve my handwriting, and my teachers are also tired now. Everyone is tired. It didn't improve. So I came across this very interesting quote that, you know, people who are very intelligent, they don't have good handwriting. So I'm like, amazing. अब तो सुधारनी भी नहीं है। Coming to the point, 5% हम रखते हैं रिजर्व स्पेस। ओके, तो 5% स्पेस रिजर्व होता है हर नोड का, जिसको हम कहते हैं रूट रिजर्व स्पेस। ठीक है, 5% स्पेस रिजर्व होता है रूट रिजर्व स्पेस। अब हमारे पास 3 रैक है, तीनों रैक में 20-20-20 नोड्स है, और हम यहाँ पे 5% स्पेस हमने रिजर्व रखा है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि 32 TB जो है, इससे ज्यादा HDD नहीं होती है। हर नोड का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 32 TB का। ठीक है, अब हमने क्या किया, 5% ऑफ 32 TB हमने कर दिया रिजर्व। चलो गेट बैक टू योर कैलकुलेटर्स एंड टेल मी 32 TB का 5% कितना होता है, जल्दी से, क्विक। लॉट्स ऑफ इंजीनियर्स हियर, सो कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज बच्चा लोग? चलो क्विकली टेल मी।
5 into 32 divided by 100, it will come to 1.6 TB. Right, 1.6 को अभी 60 मशीन्स है, 1.6 को हम 60 मशीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम अराउंड से 96 TB समवेयर अराउंड। तो इतना जो हमारा मेमोरी है ये क्या हुआ इतना 96 TB का जो मेमोरी है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने किया है वेस्ट। ये पता ही नहीं है हमको, हमने इसको रूट के लिए रिजर्व रखा है। और एक चीज समझ लो कि व्हेन वी आर डीलिंग विथ हडूप, हमारा रूट से कोई लेना देना है ही नहीं। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विथ लिनक्स एंड द रूट। तो विदाउट एनी रीजन जिस रूट से हमको बात ही नहीं करनी है, वो मराठी में एक सेइंग होती है ना, येऊ नको तर कोणत्या गाडीला बसू, उस तरह से जिस रूट से हमको कोई लेना देना है ही नहीं, उस रूट को हमने 96 TB का मेमोरी रिजर्व किया। Sadik, we'll have a Marathi class later. This is for people who do understand Marathi. आना ही नहीं है तो कौन सी गाड़ी में बैठूं ये पूछना क्यों है? That similarly, जब हमको रूट से बात करना ही नहीं है तो हमको रूट के लिए रिजर्व स्पेस रखना क्यों है? Getting it? तो रूट को हमने इतना रिजर्व स्पेस क्यों रखा है? तो हम क्या करते हैं, ये जो रूट रिजर्व स्पेस है इसको हटा देते हैं ताकि वो 96 TB भी हम यूज में ला सके, क्योंकि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है एंड वी विल नीड दिस स्पेस, वी विल नीड दिस मेमोरी। जॉब रन नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको ये साइज जरूरी पड़ेगी। एग्जैक्टली, AWS का बिल भरना ही नहीं है तो देख क्यों रहे हो, वेव ऑफ करा लो। Any which ways. So that was the concept of root reserve space. Are you all clear? चलो thumbs up दो फटाफट जिनको समझा है, जिनको नहीं समझा you all can go with a thumbs down. Please repeat. Okay आकाश, so 3 रैक है, 3 रैक में 20 नोड्स है, look at the screen, और as per the recommendation HDD में 5% हम रिजर्व रखते हैं स्पेस। This space is reserved for root operations के लिए, Linux की root के लिए रिजर्व होता है। Hadoop is platform independent, it sits on Java, it has nothing to do with Linux once it is deployed, it has nothing to do with the root। तो रूट के लिए जो रिजर्व स्पेस है वो अगर 5% हर रैक का जाता है तो 60 मशीन्स का अराउंड 96 TB हमने रिजर्व कर दिया। मतलब इन शॉर्ट ये मेमोरी वेस्ट हो रहा है, तो हम इसको फ्री करते हैं एंड वी ब्रिंग इट इन यूज। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट रिजर्व स्पेस। एग्जैक्टली, सो इसीलिए उसको फ्री कर रहे हो उस मेमोरी को। सादिक, स्वैपीनेस पे तुम्हें आई नहीं, I didn't teach you swappiness yet, so why are you asking me questions about swappiness? Let me explain and then you can ask me, okay? So far so clear? Come on, back up, quickly बोलो, यहाँ तक ठीक है? Amazing, good, very good. चलो अभी let's come to the last concept, that is swappiness. Who can tell me what is swap partition? What do you mean by swap partition? कितना रखते हैं हम, क्या होता है, कितना पता है आपको इसके बारे में? अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यू शुड नो दिस, सो कम ऑन, ट्राई एटलीस्ट। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ट्राई। तो पहले एक क्वेश्चन आता था, स्वैप पार्टीशन फॉर लिनक्स कितना होता है, ओके? तो उसका आंसर ये है कि 1/3 ऑफ द रैम, 1/3 ऑफ द रैम इज रिजर्व्ड फॉर स्वैप पार्टीशन। तो हायरार्की कैसी चलती थी? रूट स्लैश var स्लैश स्वैप स्लैश होम, और एक और स्लैश आता है दैट इज USR, जहाँ पे हमारे थर्ड पार्टी एप्स बैठते हैं। एक मिनट, so slash var slash swap slash home and then slash USR, USR local Hadoop देखते हैं ना वो। लेकिन when you come to cloud there is only one thing, that is slash v, एक ही हायरार्की है। This is the only file system hierarchy in cloud. अब स्वैपिनेस यूज कहाँ होता है? रैम जो है, रैम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रैम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। रैम की मार होती थी पहले, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट, एक्सपेंसिव एंटिटी है।
जो भी हमारे फास्ट रनिंग जॉब्स है, करंटली रनिंग जॉब्स है, वो रैम में आके बैठते थे। फिर अगर 4 जॉब्स ने पूरा रैम खत्म कर दिया तो 5वां जॉब कहाँ जाएगा? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता था। तो फिर उसमें क्या होता था कि हम कुछ स्पेस, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 ऑफ योर रैम इट वाज रिजर्व्ड फॉर योर रूट, सॉरी, इट वाज रिजर्व्ड एज योर स्वैप पार्टीशन। ठीक है, इट वाज रिजर्व्ड एज योर स्वैप पार्टीशन। तो अगर मेरे को 2 GB रैम चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि मुझे 2 GB रैम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता था? मुझे निगोशिएट करना पड़ता था। मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा, मतलब जो भी हमारे .exe यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, जब आप उन पे डबल क्लिक करते हो, तो डबल क्लिक करने के बाद क्या होते हैं? वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे उनका मेमोरी का रिक्वायरमेंट क्या है ये पता चलता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 2 GB मेरा मेमोरी रिक्वायरमेंट है कोई भी एक फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 2 GB रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या बोलूंगी? भाई मुझे 2 GB रैम दे दो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, प्लीज कैन यू लेंड मी 1,000 रुपीज टुडे? शी विल से व्हाई? अच्छा, बस ऐसे ही दोस्तों के साथ मैकडी में जाके पार्टी करनी है, पार्टी शर्टी करनी है, 1,000 रुपए दे दो। मम्मी बोलेंगी भाई मेरे 5 बच्चे हैं, पांचों को 1-1 हजार देने पड़ेंगे। इफ यू स्टार्ट आस्किंग मी, एवरीबडी विल स्टार्ट आस्किंग मी, तो इतना तो मेरे पास नहीं है, ये 200 रख और खुश रहे, गो ईट सम वड़ा पाव, बिकॉज दैट आई कैन अफोर्ड फॉर ऑल 5 kids. Mic distorted. Just give me a minute. Is that clear now? Am I clear? आवाज क्लियर आ रही है? यस। ओके। 1000 में अभी भी बहुत कुछ हो जाता है योगित। जिस दिन 1000 रुपए कमाने में कितनी एफर्ट्स लगती है पता चल जाता है ना, उस दिन पता चलता है कि 1000 रुपए में क्या क्या होता है। सो इन 1000 rupees आई कैन बुक अ ओला, गो टू क्लाउड एज, टेक अ सेशन, कम बैक एंड स्टिल सर्वाइव फॉर 5 to 10 days. Anyways, am I clear now? Am I clear now? Okay, okay. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. I think my headphone just got disconnected. Okay, okay. कहाँ थी मैं? Come on, remind me. अच्छा, 1000 रुपए वड़ा पाव मम्मा, नेगोशिएशन चल रहा था हमारा। ओके ओके। सो मम्मा सेज नो, आई वोंट बी एबल टू गिव यू 1,000 rupees, आई ओनली गिव यू 100 or 200. आई से ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट गिव मी दैट एंड आई स्टार्ट, एटलीस्ट पार्टी स्टार्ट तो करते हैं। आई स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद मुझे और मेमोरी रिक्वायरमेंट आती है। तो क्या होता है कि भाई यहाँ जो अनयूज्ड है, जो जो ऐप, वो उठा के मैं उसको कहीं और डाल देती हूँ, और जिसकी रिक्वायरमेंट आई है उसको अभी मैंने रैम में लेकर आ गई। For example, I am using a notepad, I am watching a movie on some player, and there is also music player. तो मैं क्या करती हूँ? ये सारे एप्स ओपन करके रखती हूँ। अब मैं मूवी देख रही हूँ ना, मेरा म्यूजिक प्लेयर यूज में है ना मेरा नोटपैड यूज में है। तो ये बंदा क्या करेगा? जो होशियार लिनक्स होता है, वो उठाएगा उसको और उसको जाके कहीं और रख देगा, और रैम में सिर्फ अब मेरा मूवी प्लेयर है। सडनली जब मुझे म्यूजिक प्लेयर ऑन करना है, तो वो एक डमरू दिखता है, दैट आवर ग्लास कम्स, कि हाँ आ रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं और से फेच करके लाता है, उसने उसको स्वैप कर दिया है किसी और ऐप के साथ जो फिलहाल यूज में है। लाइक आई एम टाइपिंग समथिंग इन नोटपैड एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग अ मूवी, सो ये दो मेरे रैम में है, लेकिन अभी मेरा म्यूजिक प्लेयर काम में नहीं आ रहा है ना, तो उसको कहीं और उठा के रख दिया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या करते हैं, देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, स्वैपिनेस को तुम 3 कर सकते हो। इफ यू मेक इट 0, it means no swappiness, you absolutely do not want any swappiness. Then if you make it 1, means full swappiness, 1 है तो full swappiness है। और अगर आप swappiness 10 रखते हो, तो 10 swappiness हमारा कब यूज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक होते हैं आपके सिस्टम एप्स, और दूसरे होते हैं आपके थर्ड पार्टी एप्स। ठीक है, कुछ आपके सिस्टम के एप्स होते हैं, कुछ आपके थर्ड पार्टी एप्स होते हैं। तो अगर आप स्वैपिनेस 10 रखते हो, तो आपके जो सिस्टम एप्स है, आई रिपीट, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, ओके, जस्ट अ फ्यू मिनट्स गाइज एंड देन आई लेट यू गो। उसके बाद यू आर फ्री, फिर जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाली बात है। सिस्टम एप्स, ओके, जब आप 10 रखते हो स्वैपिनेस, तो आपके जो सिस्टम एप्स है वो स्वैप हो जाएंगे। लेकिन आपके जो थर्ड पार्टी एप्स है, लाइक हदूप, ये स्वैप नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एनवायरमेंट क्या है। इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपका एनवायरमेंट क्लाउड है तो कम ऑन आंसर, अगर आपका एनवायरमेंट क्लाउड है तो आपका स्वैपिनेस क्या होगा?
नो, जीरो. हु सेड दैट? अजीज पटेल. यस. तो बिल्कुल भी स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है. क्लाउड में कोई रैम की कमी है ही नहीं. आपने 1 BHK का घर मांगा, उसने महल दे दिया, हवेली दे दी, इतना रैम अवेलेबल है, तो जीरो स्वैपिनेस रख सकते हैं. बेयर मेटल एनवायरमेंट है तो ठीक है भाई, बेयर मेटल पे है तो आपको जो सिस्टम ऐप से उनको स्वैप करना पड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे, उसको 10 रखेंगे. समझ में आया स्वैपिनेस का कॉन्सेप्ट? Any doubt so far in all the concepts that I have walked you through today? कुछ है जो आपके समझ में नहीं आया? Let me just recall everything. मैंने आपको IP tables समझाए, मैंने आपको IPv6 समझाया, मैंने SE Linux समझाया, मैंने THP का कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने LZO का कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने आपको NSCD समझाया, मैंने NTP समझाया, कर्नल ट्यूनिंग बताया, इसके साथ मैंने आपको cron YD भी बता दिया. What else? कुछ रहा है क्या? स्वैपिनेस बता दिया. अब इसके नीचे आप इस स्क्रिप्ट में देखिए, what are we doing? यहाँ पे हम कह रहे हैं sudo sh disable, फिर हम बोल रहे हैं sudo sh disable SE Linux, disable IPv6, disable IP tables. अब हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. फिर हमने LZO इंस्टॉल किया फॉर कंप्रेशन, हमने NSCD इंस्टॉल किया नेम सर्विस कैशे के लिए, हमने टूल्स इंस्टॉल किए कर्नल ट्यूनिंग के लिए, हमने tune.sh रिमूव किया, tune_kernel_sh को ये किया कर्नल ट्यूनिंग के लिए. ये मैंने आपको बोला था तीनों आते हैं. हमने NTP इंस्टॉल किया आपको नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए, मैंने अभी बताया था. फिर सिस्टम CTL में ये NTPD को डाला है एंड हमने स्वैपिनेस देखा है, उसको 1 किया है एज आई टोल्ड यू. उसके बाद ये दिस इज नथिंग बट अ स्क्रिप्ट. इट इज अ पाइथन स्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है. जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये स्क्रिप्ट वो कर रही है. बेसिकली दिस स्क्रिप्ट विल बी डूइंग योर स्मोक टेस्ट फॉर यू. ओके. ट्रांसपेरेंट ह्यूज पेजेस को डिसेबल किया है. यहाँ पे SSD SSD इंस्टॉल किया है हमने, आप देख सकते हो ये पूरे स्क्रिप्ट में. एंड या दैट्स इट. आई मीन that entire script, once you run, your job is successfully done and all parameters are passed. Can you see this here? So this script will be made available shortly. Please try and execute this script. Any doubts, do get back to me next time when we meet. And do practice, guys. It's very important that you do this, okay? Smoke test is something that you may need to do a lot of times in your career. So yeah, we are done for today. Have a good day. I hope you all enjoyed the session. If not enjoyed, at least understood the session. I have deployed it for you. I've explained everything. If anything remains, please put it up in the chat. I'll be waiting here for another 2 minutes for y'all. अगले 2 मिनट तक मैं यहाँ पे हूँ. If y'all want to say something, I'll be on mute. Just put it up in the chat and then I'll leave, guys. Okay? Have a wonderful day and I hope to see you soon someday. All the best. Take care.